محمد مصطفیٰ کہیے، حبیب کبریا کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، انہی کے بعد سب کہیے۔ بہاولپور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا گیا۔ جلوسوں اور محافل میں اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بہاولپور ضلع میں 72 جلوس نکالے گئے، اہم شخصیات نے شرکت کی۔ حامد سید کاظمی کا کہنا تھا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے بغیر زبانی محبت ناکافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے گویا ان کو یہ پیغام دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، پاک بندہ ہوں، میں خدا نہیں۔ لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگا؟ شہریوں نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا دن قرار دیا۔ آج ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول ہے، بہت مبارک دن ہے اور بچوں کے ساتھ بہت خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ مبارک دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے آتا ہے۔ مرکزی جلوس کے بعد عیدگاہ میں میلاد کی محفل سجائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل کامران، میئر عقیل نجم ہاشمی، صدر ڈسٹرکٹ بار اختر عباسی اور علماء کرام شریک ہوئے۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ درج خان نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا، جبکہ مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پاکستانی چوک پر اختتام پذیر ہو گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی ڈی خان سے عاشر اشفاق کی رپورٹ۔ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مرکزی جلوس جامعہ مسجد بلاک 3 سے نکالا گیا۔ اس سے قبل مرکزی صدر میلاد کمیٹی صاحبزادہ انور حسن قریشی نے پرچم کشائی کی۔ آج سرکار دو عالم کا جشن ولادت ہے۔ میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس عظیم اور بابرکت دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں فوارہ چوک، کنگن روڈ، بڑی ٹینکی چوک، حیدریہ امام بارگاہ چوک، کلمہ چوک، دربار قادریہ چوک، گھنٹہ گھر گولائی کمیٹی سے ہوتا ہوا پاکستانی چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں۔ 500 سے زائد اہلکار ہیں، جس میں لیڈ کی ٹیم ہے، ہائی وے پیٹرولنگ ہے، ڈالفن ہے، لیڈی کانسٹیبلز ہیں، ہمارے ٹیلی کے جوان ہیں، آئی ٹی سینٹر والے جو ہیں وہ اس کو کیمروں سے وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ اگر جتنے بھی ہمارے پولیس افسر جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے آن ڈیوٹی ہیں۔ ابھی تک الحمدللہ حالات پیسفل ہیں۔ جلوس کے دوران فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ مشیر صحت حنیف خان پتافی، ایم پی اے سردار احمد علی دریشک، ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید، ڈی پی او عمر سعید ملک بھی شریک ہوئے۔ جلوس کے راستوں پر سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا یہی میری زندگانی ہے۔ رحیم یار خان میں مرکزی انجمن میلاد النبی کمیٹی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس میلاد چوک سے برآمد ہوا۔ تفصیلات دیکھیے عامر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کا جشن منانے کے لیے رحیم یار خان کا مرکزی جلوس میلاد چوک سے شروع ہوا، جس میں سینکڑوں عاشقان رسول شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول عاشقان رسول کے لیے عید کا دن ہے۔ کملی والا کرم بے مثال کر دے، کملی والا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ مرکزی جلوس میلاد چوک سے ہوتا ہوا شاہی روڈ پہنچا، جہاں ڈپٹی کمشنر نعمان یوسف، ضلع انتظامیہ کے افسران و مذہبی اسکالرز بھی جلوس میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی کہ ہم نے 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک حکومتی ہدایات کے مطابق پورے ضلع رحیم یار خان میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بخیر و عافیت اور عوام کی بھرپور شرکت سے
ये दिन मनाए गए। मरकजी जुलूस ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया, छोटी छोटी रैलियां भी उसका हिस्सा बनती गई। आशिकान रसूल जुलूस में दरूद सलाम पढ़ते, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लगाते और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करते रहे। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुआ 400 मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। मरकजी जुलूस 12:30 बजे गल्ला मंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद मजहर सईद काजमी के साहिबजादे सैयद अहसन सईद काजमी ने खसूसी खिताब किया। ये हो नहीं सकता कि सरकार उसकी झोलियों को ना भरे। सरकार अपनी खैरात अपने खजाने अता फरमाते हैं और गुलामों की झोलियों को भरते हैं। और मेरे दोस्तों, ये मोमिनों के ईमान का तकाजा है इन महाफिल में आना, इनको कामयाब बनाना। मरकजी जुलूस की इख्तितामी महफिल नात में सैयद मजहर सईद काजमी ने मुल्की सालमिया तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करवाई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। मियांवाली में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस के आगाज पर डीसी खुरम शहजाद, डीपीओ मुस्तनसन फिरोज और मुमताज आलमदीन साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मालिक ने परचम कुशाई की है। मियांवाली से हमें रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। खुरम शहजाद और डीपीओ मियांवाली मुस्तनफर फिरोज की क़यादत में 12 रबी अव्वल का जुलूस कमेटी चौक से बरामद हुआ। इस मौका पर खुरम शहजाद और मुस्तनफर फिरोज का कहना था कि आकाए दो जहां रहमतुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के, सारी अवाम जो है बाहर निकली हुई है और मजहबी जोशो जज्बे के साथ ईद मिलादुन नबी मना रही है। और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मैसेज जो है भाईचारे का, इसार का, अखुवत का, ये नज़र आ रहा है। तमाम मुसलमान जो है वो आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मना रहे हैं। बड़ी अच्छी ये तकरीब हुई और ये इंशाअल्लाह ताला सारा दिन ये जुलूस जारी रहेगा। और मियांवाली के शहरी बतौर खास मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन तमाम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस बलुखेर रोड ईदगाह चौक सिटी पार्क मेन बाजार से होता हुआ रेलवे स्टेशन चौक पहुंचा तो अहमद मुस्तफा मरहबा मरहबा के फलक शगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। शोरका का कहना था कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से हैं। ये बहुत बड़ा एजाज है हमें, तो हम क्यों ना इस बड़ी ईद को ईद की तरह मनाएं। वो हस्ती जिसकी खातिर ये कायनात दुनिया बनाई गई, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे ना आते तो ये दुनिया ना होती। तो क्या उनके लिए खुशी का दिन मनाना, मैं कहता हूँ ये अल्फाज तो बहुत कम हैं। मरकजी जुलूस रेलवे स्टेशन चौक से होता हुआ MC सब्ज़ाजार में पहुंचा, जहां अजीम शान महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया। इस मौका पर नात खानों ने बारगाह रिसालत में गुलाए हकीदत पेश किए, जबकि उलमाए कराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। मिलाद शरीफ के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा, और मेरी तजोरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई। अरे मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। मुजफ्फरगढ़ में तलेरी बाईपास चौक से जुलूस निकाला गया। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर ठोकर। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनुमा में भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाया गया। छोटे बड़े 50 से जायद जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस तलेरी बाईपास चौक से बरामद हुआ। जुलूस में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जुलूस में शामिल हुए। जुलूस कनमान चौक से कचहरी चौक पहुंचा। आशिकान रसूल का कहना था कि आज खुशी का दिन है। आज का दिन खुशी का दिन है। हर मुसलमान के हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है।
जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। एलीट फोर्स के अहलकार की नातखानी पर आशिकाने रसूल ने खूब दाद दी और फूलों के हार पहनाए। कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हजूर दाए मजे कुडे था देखो लग दे के दीवाना हजूर दाए मजे कुडे था देखो लग दे के दीवाना हजूर दाए। शुरका का कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन पर सब खुश हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जुलूस निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें ज़िंदगी दे आइंदा भी हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जुलूस निकालते रहेंगे, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन इस दुनिया में आए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही मोतबर और ईद का दिन है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दिलेरी बाईपास चौक पर पहुंचकर एहतताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोहित, मुजफ्फरगढ़। जश्न ईद मिलादुन नबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्तान में जमीयत अल कुरैश की जानिब से 132 देगों का लंगर तकसीम किया गया। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद हुसैन गाही चौक बाजार भी गई। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आशिकाने रसूल की जानिब से जगह जगह नजर न्याज का सिलसिला जारी है। जमीयत अल कुरैश ने हुसैन आगाही चौक बाजार में 132 देगों का लंगर तकसीम किया। हर साल की तरह इस मरतबा भी लंगर में चाइनीज पुलाव और गुड़ वाले चावल शामिल हैं। सरकार के आमद मरहबा, मौला के आमद मरहबा। ये भाई मेरे लिए ये ईद का दिन है। अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया हमें। आज के दिन हम खुशी करते हैं, अपने दिल की हमारी उमंग है। ये सारे मेरे भाई मेरे बच्चे लगे हुए हैं। लंगर खाने के लिए मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। जुलूस के शुरका में भी लंगर तकसीम किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत के सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे ख़त्म शरीफ का सिलसिला ये जारी और जारी है। और सुबह नावेली हम लोग 10 बजे शुरू कर देते हैं और ये शाम 5 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। मोहतमिम जमीयत अल कुरैश डॉक्टर मजहर का कहना था कि न्याज का सिलसिला कई सालों से जारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत तमाम इंसानों के लिए मशले राह है। उम्मत मुसलमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे उसना पर चलने की जरूरत है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर हर साल की तरह इस मरतबा भी जमीयत अल कुरैश के ज़ेर एहतमाम मुल्तान में 132 देगों का वसी लंगर का एहतमाम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जा रहा है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। मियांवाली के वासियों ने भी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया। मार्केटों, बाजारों और इमारतों के बाद गाड़ियां भी सजा डाली गई हैं। मियांवाली के बासियों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न अपने अंदाज में मनाया। मार्केटों, बाजारों और इमारतों के साथ साथ गाड़ियां भी सजा डाली। गाड़ी सजाने में मलिक उमैर नारू गुज़श्ता 8 साल से पहला इनाम जीत रहे हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ी सजाने में 3 दिन लगे हैं। 3 दिन की मुसलसल मेहनत होती है और अखराजात तो जितने भी आए तो कम होते हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी वजह से कायनात है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया कि वरफाना अल्लाह का जिक्र, कि हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। तो रहमतुल्लिल आलमीन का दिन है, ये 12 रबीउल अव्वल है, हजूर की आमद है, तो इसके लिए पहले भी करते हैं और इंशाअल्लाह अगले साल भी इससे बढ़ चढ़ कर। उमैर नारू के बड़े भाई का कहना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जितना भी पैसा खर्च हो जाए कम है। अगले साल इससे ज्यादा खूबसूरत अंदाज में गाड़ी सजाएंगे। गाड़ी सजाकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत दिया है। मेरे छोटे भाई हैं, माशाल्लाह 7-8 साल से इसी तरह मेहनत कर रहे हैं। हर साल पहले से ज्यादा बढ़कर करते हैं। अखराजात की कुछ भी नहीं, कोई परवाह भी नहीं करते। और जितना भी जिसने इन्होंने कहा है कि जितने हो जाए उतने कम है। गाड़ी को ताजा फूलों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। बच्चों और बड़ों ने गाड़ी के साथ खूब सेल्फियां भी बनाई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। दुनियापुर में 12 रबीउल अव्वल की शब यादगार बनाने के लिए नौजवान भी मैदान में आ गए। शबो रोज मेहनत करके मुख्तलिफ मॉडल्स बना दिए। मज़ीद जानेंगे याकूब ताहिर से। याकूब, हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा कैसे मॉडल्स तैयार किए गए हैं।
میں موجود ہوں. یہاں پر کچھ نوجوانوں نے دن رات محنت کرنے کے بعد مختلف جو ہے پاکستان کے ماڈل بھی تیار کیے اور خاص طور پر یہاں پر مدینہ پاک اور مکہ پاک کا جو ہے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کا ماڈل بھی انہوں نے تیار کیا ہے. اس وقت یہ جو ہیں ینگ لڑکے میرے ساتھ موجود ہیں, مزید سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی آپ بتائیں گے کہ آپ نے یہ جو بنایا ہے تو یہ کس لیے بنایا, آپ کا کیا مقصد ہے اس میں؟ السلام علیکم. ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم مناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جتنا ہم میں جذبہ ہے زیادہ سے زیادہ ہو. ہمیں تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے, لیکن مسلسل ابھی ہم زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آ کے دیکھیں. ابھی بہت سے لوگ ہیں جو دیکھنے کے لیے ہمیں آ رہے ہیں ادھر. اچھا بالکل, ایک اور بھی نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے کہ یہاں پر دن رات محنت کی ہے. اس سے بھی جانتے ہیں کہ اس نے یہ ماڈل جو ہے کیا سوچ کر بنائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ سب ماڈل تیار کیے ہیں. یہ ہمارے ان تمام دوستوں کی انتھک محنت کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اویئرنیس ہمارے بچوں میں بھی ہو, اس شوق جذبہ پیدا ہو کہ سرکار کی آمد کی خوشی میں جیسے سونا آیا سج کے گلیاں بازار, تو اس طرح سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ ہم نے اہتمام کیا. اور اللہ پاک اسے قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جذبہ دے, شوق دے, ہم اس سے بھی زیادہ اور آپ سرکار کی آمد کی خوشی منا سکیں. اچھا بالکل, نوجوانوں کا کہنا یہی ہے کہ جو وہ نعت ہے کہ سونا آیا سج گئے گلیاں اور بازار, ہم نے تو وہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بنایا ہے کہ ان کا جذبہ ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے. یعقوب طاہر آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تخلیق کائنات کا بہانہ ہے مصطفیٰ, جنت کے مالکان کا نانا ہے مصطفیٰ. رحیم خان میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عظیم الشان ریلی نکالی گئی. ریلی میں سینکڑوں عاشقان رسول شریک ہوئے. ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عامر بھٹی. رحیم خان میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سرور کونین شافی معاشر تاجدار عرب و عجم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کے موقع پر فیضان مدرسہ سے عظیم الشان ریلی نکالی گئی, جو سٹی پل اور بیلجیم چوک سے ہوتے ہوئے شام 6 بجے اختتام پذیر ہوئی. صبح سے ہی میلاد شریف کے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو امن کا پیغام دینا چاہیے اور اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہر مسلمان کو پہرا دینا چاہیے. ریلی کے روٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. عاشقان رسول نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے. رحیم خان سے یہاں سے فیضان مدینہ سے جو ہمارا مدنی جلوس نکلتا ہے, فیضان مدینہ سے ہمارا سٹی پل اور یوں ہی ہمارا بیلجیم چوک اور اسی طریقے سے ہمارا اڈا گلمرگ سے ہوتا ہوا واپس یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ میں جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو جلوس نکالا گیا بہت ہی زبردست جلوس ہے ماشاءاللہ. تمام عاشقان رسول بہت جوش و خروش سے اور جوگ در جوگ اس میں شامل ہوئے. ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی یقینی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم خان. چیئرمین پیراماؤنٹ ولاز سید یوسف رضا نقوی اور موسیٰ رضا نقوی کے والد مرحوم سید حامد حسنین نقوی کی رسم چہلم پر مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. دو کھیت پرے جل بہتا تھا اور پھول یہاں کملاتے تھے. اتنا پانی بہ رہا تھا مگر ایک گھونٹ سکینہ کو پلانے کے لیے نہیں تھا. حسین مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے. ہمارا مائک آن. ایک لاشا قاسم کا لاشا. جب جناب قاسم نے آواز دی نا چچا میری مدد کیجیے گا, حسین گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار نکال کر ایسے چلے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے
और आवाजें देने लगे, बचो, अली का लाल हुसैन आ गया। तो यहां के घोड़े वहां, वहां के घोड़े यहां, और एक आवाज फिजा में गूंजती रही, चचा बचाइए, चचा मदद कीजिए। और जब जनाबे कासिम के लाशे पर पहुंचे हैं ना इमाम हुसैन, तो लाशा पामाल हो चुका था। और रोने वालों, करबला में 2 बदन पामाल हुए, घोड़ों की टापों से 2 बदन पामाल हुए, एक हुसैन का बदन, एक कासिम का बदन। फर्क यह है कि एक शहादत के बाद पामाल हुआ और एक जिंदगी में पामाल हुआ। आवाजें देते रहे, और फिर जब बैठे ना अपने भतीजे के लाशे पर, तो फरमाया तेरे चचा पे बड़ा गिरा है, तू मदद के लिए पुकारे और तेरा चचा तेरी मदद न करे। लाशा लेकर आए तो सारी बीबियां तो इस्तकबाल में खड़ी थी, मगर इस बच्चे की मां नहीं थी। तो ताज्जुब से जनाब ज़ैनब को देखकर फरमाया, बहन, भाभी उम्मे फरवा कहां है? तो एक बीबी की आवाज आई, जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो उम्मे फरवा पुश्ते खैमा पे चली गई थी। अब जनाब ज़ैनब ने जाके क्या देखा, पेशानी सजदे में है और जनाब उम्मे फरवा तस्बीह पढ़ रही है, शुक्रन शुक्रा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। जनाब ज़ैनब ने सजदा मुकम्मल देखा तो आवाज दी, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। आई, वहां जा कासिम का लाशा रखा हुआ था। लाशे को देखकर आंखों में आंसू नहीं लाई, इसलिए कि अगर उम्मे फरवा रोएंगी तो हुसैन क्या कहेंगे कि मैंने अपने भतीजे, यतीम भतीजे का लाशा लाया और मेरी बेवा बहावज रो रही थी। हुसैन को हौसला देने के लिए रोई नहीं, इमाम हुसैन के सामने नहीं रोई, बल्कि इमाम हुसैन से कहा, ए भाई हुसैन, मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता दे दो। अजरुकुम अल्लाह, जो रोने आए आवाजों को आजाद करेंगे। इमाम ने नहीं पूछा भाभी उस कुर्ते का क्या करेंगी, मगर मां की आरजू थी वो खून भरा कुर्ता, वो घोड़ों की टापों से चाक चाक कुर्ता इमाम हुसैन ने उम्मे फरवा बीबी को दे दिया। बीबी ने उसे खैमे में ले जाके रख दिया। असर आशूर खैमे लूटे, ये काफिला कूफा गया, शाम गया, शाम में असीर रहा। असीरी से रिहाई के मौके पर तबर्रुकात वापस आए। हर एक बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाब उम्मे फरवा ने भी अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला करबला से फिर मदीना गया। जब मदीना पहुंची ना तो फरमाने लगी, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। अजरुकुम अल्लाह। जब जन्नतुल बकी पहुंची, कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठ गई, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया। ऐ मेरे वाली, तुम्हारे बच्चे की निशानी लेकर आई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब आप ऐसे रोते हैं ना, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। बुलंद रोने वालों को इमाम बाखिर दुआ देते हैं, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। दूसरा लाशा अली अकबर का लाशा। मेरे मौला जमीन पे गिरते थे फिर उठते थे, गिरते थे फिर उठते थे और आवाज देते थे, अली मुझे आवाज दो, मुझे नजर नहीं आ रहा। और जब अपने बच्चे के लाशे पर पहुंचे और सीने से बर्छी निकाली और अली अकबर ने अपने बाबा को कहा, बाबा मेरे सिरहाने रसूलुल्लाह आ गए, और वो 2 जाम कौसर के लेकर आए, एक मेरे लिए लेकर आए हैं, एक आपके लिए लेकर आए हैं। नाना कहते हैं, अकबर बाबा से कह दो कि नाना आपके इंतजार में है। बाबा नाना आपका इंतजार कर रहे हैं। जब अली अकबर की रूह परवास कर गई, अब हुसैन से लाशा उठता नहीं था। हज़रतारो लाशा उठा तो लिया, खड़े हुए। मैं कहूंगा मौला अली, खैबर का दरवाजा उखाड़ना आसान था, मगर करबला के मैदान में अली अकबर का लाशा उठाना, उठा तो लिया मगर हुसैन से लाशा उठ नहीं रहा था। फिर जमीन पे रखा तो बराबर में से सलाम करने की आवाज आई। अब जो इमाम हुसैन ने मुड़ के देखा तो बहन ज़ैनब खड़ी है। फरमाया, भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी, ये वाहिद लाशा है जो जनाब ज़ैनब ने उठवाया है।
अल्लाह आपकी जवानियों को सालिम रखे। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम भी किया गया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। आपको बताते चलें कि मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम से मनाया गया है। मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी इस मौका पर किया गया है। शहर भर में जुलूस रैलियां निकाली गईं और महाफिल का इनेकाद भी किया गया। हुसैन गाही के ताजरों ने भी जश्न नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया। गाही के ताजरों ने भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया। रहीम सेंटर के सदर की जानिब से मुआविन खसूसी की दस्तार बंदी की गई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। सबको हजूर पाक की आमद मुबारकबाद पेश करता हूँ और जितने भी गुलामान मुस्तफ़ा हैं, उम्मत मोहम्मदी को मानने वाले हैं, गुलाम है रसूल के, और हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हमवतनों को हजूर की आमद का ये तोहफा नजराना पेश करते हैं। सदर अंजुमन ताजरान सुल्तान महमूद का कहना था कि हमारे आका की आमद है और हम बेहद खुशी से अपनी ईद मना रहे हैं। आज के दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में उन तमाम जुलूस के कायदीन की और उन जुलूस निकालने वाले बच्चों की, जवानों की, बड़ों की, सबकी हौसला अफजाई के लिए हर साल दस्तार बंदी करते हैं और इस प्रोग्राम को आज 41 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 58 साल है। अब आप अंदाजा लगा लें कि हमारा जोश जज्बा कम नहीं हुआ, वक्त के साथ साथ बढ़ा। मखदूम यजदानी गिलानी का कहना था कि ये मौका खुशियां बांटने का है। हर तरफ से आका के नारों की आवाजें बुलंद हैं, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। हम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए